अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह पॉडकास्ट सीरीज़ में आज हमारे मेहमान है प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद शबीर। प्रोफ़ेसर डॉक्टर जावेद शबीर स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट के हेड भी है और साथ यूनिवर्सिटी ऑफ वाह लैब कम्प्लेक्स के इंचार्ज भी है। तो आइए सुनते हैं सर की कहानी उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप हमें अपनी बुनियादी तालीम के बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से आपने ली, उसके बाद फिर हायर एजुकेशन और फिर जॉब। My all education is from Bahamathpur. So after completing MSc, I top university, and then I got scholarship. At that time, the name of the scholarship was Quaid-e-Azam Scholarship. So I went to UK, University of Southampton. I did MS from that university. After completing the MS, then I moved to Kent University at Canterbury, where I did PhD. After returning back, I joined the Quaid-e-Azam University, Islamabad in 1999. In 2003, I went to USA for postdoc, University of Southern Maine. In 2005, I again went to University of North Carolina as a visiting associate professor. I spent there 6 months. After returning back, I again joined the Quaid University in Islamabad, where I spent around 25 years. And my last appointment was as a dean faculty of natural sciences. After that, uh, after retirement, I moved to uh, University of Wa, and still I am working there as a professor of statistics and chairman department of statistics. Here there is a lot of work where I earlier haven't done before at the university. So I am currently I am in charge of the lab complex, and also I have we are running 4 journals also here, where I am associate editor of various journals, including that the 4 international journals: uh, communication and statistics, simulation and computation, communication and statistics, जो other जो है communication and statistics. And then there are 3 more journals, and I am also the associate editor of journal statistics theory and practice. So currently I'm involved in various research projects also. सर, ये शुमारियात साहब का ताल्लुक तो कई दिहाइयों से है, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 दिहाइयों से। पर जब आपने पीएचडी शुरू की थी तो उस टाइम आपने कौन से सब्जेक्ट को खुद ऑप्ट किया था या उधर से कोई प्रोजेक्ट मिल गया था? और अभी जो आप स्टूडेंट्स को करवा रहे हैं तो उसकी क्या नौइयत है और उसमें फ़र्क कितना आ रहा है सर, उसी टाइम में और अभी? There is a lot of difference between earlier when I did and that time, that the beginning of the statistics, that और सर ये कौन से सन की बात है? year जब आप 1993. 1993 में, ओके। So at that time, that was I got admission in mathematics, and after that, I didn't understand what teacher is going to teach us. Then I moved to statistics. So Okay. after Okay, sir, इसमें I have a very short question, that it's not necessary for a student who is graduated in statistics and can got admission outside the country in foreign university in mathematics or in any other Yeah, disciplines. yeah. तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसी तरह बाहर No, दुनिया में? there is no restriction that Right. we can go. But my interest developed after the complete as a MSc. Okay. So I thought that at this moment this subject is more easy for me to Okay. complete the PhD. Mathematics was more easy for you than statistics. Statistics was more easy as compared to the method. Because when you complete the MSc, Okay. at that time you know that particular in statistics or mathematics, which subject is very comfortable for you to complete the PhD. So, sir, will the traditional statistic remain competitive against data science, machine learning, and AI today or not? No, no, still we are using, we revise our curriculum, and HTC also जो है involved in that curriculum, and they finalize जो HTC जो है जो adopted various जो है courses and included in that जो है in statistics.
So I think that is a good decision that we have to use add these courses earlier before जो है 4-5 year earlier, but वो still वो जो है HTC जो है we feel comfortable at this moment that the HTC did the best job to add the new courses. ठीक है. सर आजकल मार्केट में जो अवेलेबल जॉब्स है, काफ़ी सारे जॉब्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, एकेडेमिया है, और भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो क्या स्टैटिस्टिक का कोई ग्रेजुएट वहाँ ईज़िली एडजस्ट हो सकता है? या आने वाले 10 सालों में या 20 सालों में तो उसका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? uh, because we updated our courses. मेरे ख्याल में जो है अब जो है जो हमारा स्टूडेंट है जिसको हम रेडी कर रहे हैं कि विद जो है डिफरेंट जो है इक्विपमेंट के साथ जो है कि टीचिंग के साथ साथ जो है हम जो है ज़्यादातर जो है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो कंप्यूटर की आ गई है, तो हम उनको जो है जो उनको उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो इस लेवल की दे रहे हैं कि बच्चा जो है जो ऑटोमेटिकली जो है जहाँ भी वो अप्लाई करे वो आगे जो है मूव कर सकें, ठीक है। तो वैसे ये अच्छा ज़्यादा सर, इस बेसिक समय मार्केट में जो ऑलरेडी अवेलेबल लोग हैं, वो अपने आप को डेटा एनालिस्ट कहते हैं। तो जी। डेटा एनालिस्ट और शुमारियात का तालिब इल्म दोनों में सर बुनियादी फ़र्क कहाँ आता है और क्या ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं? डेटा एनालिस्ट बेसिकली जो है हम जो है उस तरफ जा रहे हैं कि कंप्यूटिंग पार्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे पाइथन है, आर है, एक क्लाउड्स है, दूसरी जो है जो लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी है उसको आपने जो है डेटा एनालिसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो शुमारियत बेसिकली वो तो बेसिक आपके पास चीज़ें हैं, लेकिन एक एक अब जो है डेटा एनालिस्ट की फार्म में जो है हम नए कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जैसे कंप्यूटेशनल स्टैटिस्टिक्स जो है, इस तरह जो है और भी बहुत सारे जो है जितने भी कोर्स हैं उसमें सब इन्वॉल्वमेंट सर हमारे कंप्यूटर की है। इससे मैं ये मकसद ले सकता हूँ कि डेटा एनालिसिस एज़ एडवांस फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक। हिंदी नहीं, ओके। यू कैन डू ओके सर, क्या जो आजकल के तालिब इल्म स्टैटिस्टिक के तालिब इल्म के लिए जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हुए जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है या मुख्तलिफ टूल्स है, उससे इक्विप्ड होना ज़रूरी है या सिर्फ ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक जो बुनियादी बेसिक स्टैटिस्टिक है उस पे रिलाई करना है ना? उसमें होना ज़रूरी है। जो कंप्यूटेशन पार्ट जो है उ उसी की वजह से जो है हम आगे जो है मूव कर रहे हैं ना, वो तो हमने उसमें रख दिया है ना। हर सब्जेक्ट में हम चाहते हैं कि जो आप टीच कर रहे हैं उसको जो है कंप्यूटेशनल की तरफ ले जाएँ, ताकि जो है जो बच्चा जो है हम उसको जो है रेडी कर सकें फ्यूचर की डिमांड के लिए। सर ऐसे कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अभी आप यूनिवर्सिटी अफ़वा में स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को बेसिक स्टैटिस्टिक के अलावा पढ़ा रहे हैं? अब अभी तो हम जो है बेसिकली जो हमने डेवलपमेंट की है ना, वो हर सब्जेक्ट में हमने वो कोर्सेज जो है कंप्यूटेशनल पार्ट के रख दिए हैं। यानी जो टीचर जो है आपको जो है वो थ्योरी पढ़ा रहा है, उसकी जो है कंप्यूटेशनल भी उसको जो है बताया कि आर में इसमें कैसे जाना है, चैट जीपीटी को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह जो है अदर टूल जो है वो जो डेटा को एनालाइज करने के लिए बेसिकली हमारे पास जो है डेटा जो है वो बड़ी फार्म में बिग फार्म में है, ठीक है। तो उसको जो है एनालाइज करने के लिए हमने देखना है कि इस पर्टिकुलर जो है सिचुएशन में कौन सा जो है टूल जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है, आगे मूव करने के लिए। तो बेसिकली हम जो है जो स्टूडेंट को जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम कर रहे हैं, ठीक है। हमारी लैब है, दूसरी है और जो कुछ जो है हमने टीचर जो है जो कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट से भी लिए हैं, ताकि जो है हमारे बच्चे को जो है हम जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड कर सकें। सर ये बात कहाँ तक सच है कि जो मस्नूई ज़हानत है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट को रिप्लेस कर लेगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज़ जो है जो हुँ, हम जो है जो रिसर्चर जो है वो सोचता है उसके बाद जो आइडिया है हुँ, वो कंप्यूटिंग नहीं ले सकता, हुँ, ठीक है। कंप्यूटिंग से आप कहते हैं कि ये आइडिया दे दो, हुँ, ठीक है, वो कंप्यूटिंग जो है आपको दे सकता है, हुँ, इट इज़ नो डाउट, हुँ, ठीक है। लेकिन ये है कि आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते। जो आदमी सोचता है हुँ, वो नहीं सोच सकता है, वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे गाइडलाइन ले सकते हैं। एज़ ए हेल्पिंग टूल जो है वो हमारी हेल्प करता है, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन ये है कि कौन डिसाइड करेगा कि इसने जो आंसर दिया है ये करेक्ट है, ये हुँ, रॉन्ग है, ठीक है? जो इनोसेंट स्टूडेंट है, जो नए बच्चे हैं, दे थिंक दैट देन एवरीथिंग चैट जीपीटी कैन गिव अस आंसर बट दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है? तो हम उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक सर है? उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। यस वी गेट चैलेंज
आई डिड मैनी टाइम ओके, चैलेंज, ठीक है। तो इस तरह जो है जब आपको यकीन हो जाए कि वाक़ई इसने जो है सही काम किया है, तब उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ जो है उसका जो है हेल्प ले लेनी चाहिए। बाकी जो है आप अपने माइंड से उसको डेवलप हाँ। जो जो आप सोचते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आपको चलना है। सर इसको अगर आप हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट है या जो ऑलरेडी BS 6-7 में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक उनके लिए थोड़ा और वाज़ेह कर दें कि 100% AI पे रिलाय ना करें, बेसिक एजुकेशन हासिल करें। उसको सर अगर आप कुछ एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टूडेंट अपने को ट्रेनिंग देते हैं, उनको ये बात बताते हैं कि कंप्लीटली यू कांट रिलाई ऑन द एआई, ठीक है। लेकिन ये कि उनको बताते हैं कि कहाँ जो है वो आपने उससे पूछना है, क्या जो है उसका जो है एआई आपको क्या जवाब देगा, उसके मुताबिक उसको ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है। सर स्टूडेंट को किस डोमेन में हम उस पे रिलाय कर सकते हैं? किस डोमेन में नहीं कर सकते बीइंग एज़ अ स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट? because students think that everything that AI can give you answer that is the correct. यस, दे थिंक दैट जो इज़ वो 100% जैसे परफेक्ट। उस्ताद जो है, टीचर जो है, वो स्टूडेंट बच्चा समझता है कि टीचर जो बात कह रहा है वो सही है, ठीक है? इट इज़ नो डाउट। लेकिन ये कि अब जो है सारी शिफ्टिंग जो अगर उस पर हो रही है, ठीक है? अब स्टूडेंट समझता है कि उसने बिल्कुल ही सही जो है आंसर दे दिया है, एवरीथिंग इज़ गुड दे कोई भी लेकिन जब हमें फ़ील होता है कि ये स्टूडेंट ने जो ये काम किया है, ये सारा जो है यूज़लेस है, ठीक है? उसने उससे हेल्प ली है, ठीक है? बेशक हेल्प ली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट जो है, जो दूसरी जो है रॉन्ग साइड पर जा रहा है, उसने जो हेल्प ली है, जो हेल्प वो सही नहीं है। हमें भी कई दफ़ा प्रॉब्लम हुआ है, जब उससे हेल्प लेते हैं, वो सही जवाब नहीं देता, ठीक है? तो उस इस तरह जो है चैट जीपीटी जवाब दे रहा है, डीप सीक जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये है कि डिसीजन तो है वो आपने करना है कि क्या जो है वो जो आंसर दे रहा है, वो किस हद तक सही है। सर इसको मैं इस तरह कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि चैट जीपीटी को या जो AI टूल्स को यूज़ करने से पहले हमें बेसिक एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। बिल्कुल, इस उसमें सही अपनी फाउंडेशन बनानी चाहिए। उसके बाद अगर हम उसे यूज़ करें फॉर एप्लीकेशन पर्पसेस सो सम टाइम वी कैन रिलाई ऑन दैट, सम टाइम वी कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। ओके सर, इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, क्या वाई यूनिवर्सिटी में जहाँ आप स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के हेड भी है, कौन-कौन से प्रोग्राम आप ऑफ़र करते हैं स्टूडेंट्स के लिए FSC के बाद या फिर MS के बाद या फिर PhD के लिए कौन से प्रोग्राम आप ऑफ़र अभी करते हैं? हम जो है जो बीएस जो स्टैटिस्टिक्स को रिप्लेस कर दिए है स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स, ठीक है? और जो हमारे जो है एमएस जो है उसको जो है वो सिर्फ जो है हम जो है स्टैटिस्टिक्स में अभी करवा रहे हैं, तो उसको भी हम जो है रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन हमने कोर्सेज जो है वो नई जो एडवांस टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, ठीक है? उसमें भी हमने चेंजिंग कंप्लीटली ला दी है, एमएस में भी और बीएस में भी हमने कंप्लीटली जो है वो कोर्सेज जो है चेंज कर दिए हैं। अब स्टूडेंट को जो है जो बेसिक नॉलेज के साथ-साथ जो है हम जो है वो कोर्सेज़ भी जो है हम वो पढ़ा रहे हैं, ताकि जो है बच्चा जो है फ्यूचर में जो है वो कहीं भी अगर जो है जॉब करना चाहते हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको कोई हर्डल फ़ील ना हो। सर करंटली कौन-कौन से अवेलेबल है? मीन्स अगर अभी मुझे कोई स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करे कि मैंने वाई यूनिवर्सिटी में स्टैटिस्टिक में जाना है एंड ही इज़ जस्ट फ्रेश, उसके पास FA या FSC सर्टिफिकेट है, तो वो किधर आएगा? वो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक जो कोर्स को वो जॉइन कर सकते हैं। सर ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स है और जो ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिक है, इसमें फ़र्क है या दोनों सिर्फ नाम डिफरेंट है? नहीं, इसमें हमने जो है जो ज़्यादातर कंप्यूटिंग के कोर्स डाल दिए हैं, ठीक है? जो स्टैटिस्टिकल डेटा है यानी ओके। कंप्यूटेशनल पार्ट को इंक्रीज़ कर दिया। ओके और सर साथ में ये भी समझा दीजिए, क्या ये डिग्री HEC से रिकॉग्नाइज़ भी है या ये सिर्फ़ वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है? बाहर दुनिया में इसकी कोई वैल्यू होगी या यहाँ पे बंदा 4 साल रहेगा और उसके बाद लोग उसे कहेंगे कि आपकी डिग्री की तो वर्थ ही नहीं है, ये तो हम मानते ही नहीं है, क्या ऐसा भी हो सकता है? एचईसी ने जो है जो क्लियर अपने करिकुलम में जो है हुँ, बता दिया है कि अगर आप जो है ये कोर्सेज़ पढ़ लें, जो जो बेसिक कोर्सेज़ उनके साथ तो आपको जो है जो जो स्टैटिस्टिक विद डेटा एनालिटिक्स हुँ, समथिंग और स्टैटिस्टिक्स विद जो है बायोस्टैटिस्टिक्स, हुँ, स्टैटिस्टिक्स विद ओआर, हुँ। तो उन्होंने डिफ़ाइन कर दिए हैं कि ये कोर्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपको जो है वो डिग्री भी एक जो है सेपरेट मिल सकती है, जो इनिशियल डिग्री है। और वो HEC रिकॉग्नाइज़्ड डिग्री। वो लाज़मी बात है, एचईसी ने जो है अपने जो करिकुलम में डिफ़ाइन कर दिया है, फिर वो एज़ ए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, कहीं भी एडमिशन ले सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है। तो अभी आपके पास सर BS की डिग्री है, MS की डिग्री है और PhD की डिग्री आप लोग ऑफ़र करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ़ गोवा में और उनकी ड्यूरेशन सर एग्ज़ैक्टली इसी तरह है जिस तरह बाकी साइंसेज़ की? ड्यूरेशन वही है, ठीक है? अभी पीएचडी हमने स्टार्ट नहीं की, वो होपफुली फ्यूचर में हम जो है इसको भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी आपके पास 2 प्रोग्राम है जो आप अब ऑफ़र हम जो बीएस जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स ओके। और जो है एमएस जो है स्टैटिस्टिक्स। और सर इनकी क्या है ये 4 साल और 2 साल की डिग्री है, 4 साल BS की है और 2 साल MS की है या ज़्यादा है?
2 साल एमएस की। 2 साल ज़्यादा है। सर कौन से फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है जो 4 साल डिग्री के लिए है या 2 साल डिग्री के लिए? मीन्स आई मीन फॉर बीएस और फॉर एमएस? तो कंप्यूटिंग लैब जो है हमने जो लेटेस्ट कंप्यूटर लैब हमारे पास है, हम जो है वहाँ पर जो है बीएस वालों को भी जो है जो वो जो कोर्सेज जो है जिसके रिलेटेड जो है वो कंप्यूटिंग की ज़रूरत है वो वहाँ पर उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो है जो दूसरे जो है एमएस के स्टूडेंट जो है उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑन जो है कंप्यूटिंग लैब की तरफ ज़्यादा हमारा फोकस है, ठीक है। ये तो दूसरा जो हमारा जो ज़्यादा जो लाज़मी बात है कि जो हमारे पास जो है जो एमएस के स्टूडेंट हैं उनको जो है रिसर्च की तरफ जो है हम कन्विंस जो है वो को कोशिश करते हैं, ठीक है। ताकि जो है उनको पता चले कि हाउ वी कैन डेवलप अ न्यू जो है मटेरियल जो है, ताकि जो है आगे उनको जो है जो सेल्फ सफिशिएंट की तरफ जो है वो जाएँ और जो है खुद जो है आपने जो है लिया जो है जो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उसको उसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है आगे फ्यूचर की तरफ जो है अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर कर सर एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ गुज़िश्ता कई सालों से एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल आ रहा है एडमिशन में। इंजीनियरिंग में भी अभी रिसेंटली आपने पढ़ा भी होगा कि मेडिकल के भी काफ़ी सारे सीट ऐसे हैं जो ऑलरेडी उनके पास है मुख्तलिफ कॉलेजेस के पास लेकिन वो वैकेंट रह गए हैं। क्या वजह है सर कि जो आज का नौजवान है वो तालीम की तरफ कम और जो शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए ज़्यादा जा रहा है? रीज़न सर पहले जो इसके? है पहले जो है जो ये अब जो जो हमारे कोर्सेज़ थे वो अप टू डेट नहीं थे। हमें जो है ये पहले जो अप टू डेट कर लेने चाहिए थे, ठीक है? वो 10-15 साल पहले। तो बेसिकली जो है जो स्टैटिस्टिक्स या चीज़ें हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, ठीक है? अब क्योंकि जो है हमारा सारा काम जो है वो एनालिसिस की तरफ जो है वो मूव हो गया है, ठीक है? तो इसलिए जो है जो एडवांस टेक्नोलॉजी का वो होना ज़रूरी था, ठीक है? उसके बगैर जो है आपका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है, ठीक है? तो हमने जो है जो अपने डिज़ाइन कोर्स किए हैं वो भी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो लेकर जो है हम चाहते हैं कि हमारा जो है जो बच्चा जो ग्रेजुएट है, ठीक है? वो जो है वो ये टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो आगे जो है वो जा सके और फिर कहीं भी उसको जो है कोई रुकावट ना हो। सर आपके पास जो डाउनफॉल है बीएस के एडमिशन में या एमएस में इसकी बेसिक कहाँ से एशन द बीएस समझते हैं? बेसिकली वजह यही थी कि हमारे पास कंप्यूटेशनल पार्ट वो नहीं था, ठीक है? हम जो है थ्योरेटिकल या दूसरे जो है वो कोर्सेज़ जो है पढ़ा रहे थे। अब आने से जो है जो एक जो बच्चे को रोज़गार जो है वो ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए वो डाउनफॉल था। अब हम जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने जो है वो डेटा एनालिटिक के जो है कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। अब उनमें जो है आप देखें कि तादाद जो है जो बच्चों की जो है इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है? तो ये फ्यूचर में जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो हमारे जो बच्चे जो है वो एडमिशन जो है वो इंक्रीज़ होंगे क्योंकि अब देखें कि बच्चों को बहुत सारे बच्चों को जो है वो अवेयरनेस नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स की डिमांड जो है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। सर अभी अगर आप इसको थोड़ा-सा और वाज़ेह कर दें कि स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक है ये कहाँ-कहाँ एडजस्ट हो सकते हैं? तो थोड़ा और स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो जाएँगे इसकी तरफ। ये ये तो बहुत सारे फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? तो बेसिकली कॉम्पिटिशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, एमएस के बाद जो है स्टूडेंट का एडजस्ट होना ज़रूरी है या फिर पीएचडी के बाद जो है उनके लिए वो जॉब जो है वो बहुत सारी हैं, जहाँ पर जो है डेटा एनालिसिस जितने भी फ़ील्ड है मल्टीडिसिप्लिनरी के वहाँ पर जो है डेटा एनालिसिस जो है वो टूल जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है ग्रेजुएट वो बेहतर जानता है, ठीक है? उसको पता है किस सिचुएशन में कौन-सा जो है टूल इस्तेमाल करके हम जो है एनालिसिस कर देंगे। एक बेसिक डेटा पर अगर मैं 10 बच्चों को कहूँ कि ये आप जो है ये टूल इस्तेमाल करें, हर बच्चे ने डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने हैं। देखना ये है कि कौन-सा बच्चा जो है किस तरीके से कितने कम टाइम में एफिशिएंट तरीके से उसको रिज़ल्ट निकालता है। ठीक है? वो बेहतर कंसीडर किया जाए, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो बच्चे की एडजस्टमेंट जो है वो ईज़ी हो जाती है, जो है मुगले जो है जो ऑर्गनाइज़ेशन में ठीक है, जहाँ पर डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स आ रही हैं, स्टैटिस्टिक्स का ग्रेजुएट जो है बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सर स्टैटिस्टिक के हवाले से एक एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड एल्गोरिथम बायस एंड मॉडल एथिक्स फॉर ए स्टैटिस्टिक स्टूडेंट? एल्गोरिथम जो है पहले तो सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ये समझाइए कि एल्गोरिथम बायसनेस क्या है और ये एथिकल ये चीज़ें क्या ये वाक़ई एग्ज़िस्ट करती है? एल्गोरिथम तो जो आप जो है हर जो है जो जितने भी जो है आप जो एनालिसिस के टूल्स हैं उसमें हमें वो बनाना पड़ती है जैसे आर कोड्स है पाइथन है या दूसरे कोई और दूसरे टूल्स हैं
ठीक है? वो आदमी के कंट्रोल में है। जो आप सोचते हैं, जो उसके मुताबिक जो है आप जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं, जो आइडिया आपके ज़हन में आता है, उसके मुताबिक जो है एल्गोरिदम जो है हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो वो एनालिसिस में हमारी हेल्प करता है। लेकिन ये कि बायसनेस या अनबायस्ड, ठीक है? बायसनेस को अनबायस्ड बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नीक जो है वो स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है। तो वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है? कि हम जो है एरर फ्री जो है वो एल्गोरिदम जो है बनाएँ, ताकि जो है हमारे एनालिसिस में कोई जो है मसाइल पैदा ना हो। सर एक दौड़ है इंडस्ट्री का, एकेडेमिया का। क्या ऐसा आपको नहीं फ़ील हो रहा है कि जो स्टैटिस्टिक की दौड़ है थोड़ी स्लो है और इंडस्ट्री की थोड़ी फ़ास्ट है, इस वजह से स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट है वो एडजस्ट नहीं हो सके और इंडस्ट्री काफ़ी आगे चली गई? मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ सर। रिसेंटली मैं काफ़ी सारे इंडस्ट्री का विज़िट कर चुका हूँ, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, फ़ोम इंडस्ट्री है, और अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई एक स्टूडेंट भी वहाँ नहीं मिला जो कि स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट था और वहाँ काम कर रहा था। वहाँ मुझे केमिस्ट ग्रेजुएट मिले, जो केमिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ एनालिसिस कर रहे हैं। वहाँ मुझे बायो के ग्रेजुएट मिले, वहाँ मुझे कुछ और फ़ील्ड्स के, मैनेजमेंट के, कंप्यूटर के, लेकिन स्टैटिस्टिक के नहीं मिले। तो क्या आपको नहीं फ़ील हो रहा है कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से आगे निकल गई है और स्टैटिस्टिक फ़ील्ड थोड़ी-सी स्लो रह गई है? हमने जो है इंट्रोड्यूस जो है जो कोर्सेज जो है पहले भी जो चल रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल जो है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, वो भी हमारे जो हम इंट्रोड्यूस हुँ, हो चुका है, उसको भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो है कवर किया हुआ है, ठीक है? तो आप ये देखें कि जो इंडस्ट्री में जो है बेसिकली वो जो स्टैटिस्टिक वालों को लाज़मी बात है कि उनको जो है फिर जो है स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट को लेते हैं तो उनको पे ज़्यादा करना पड़ता है। एक्चुअल उनको लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये वो आपने जो है छोटे-मोटे काम को जो है दूसरे जो है जो ग्रेजुएट है उसे वो चला रहे हैं, हालाँकि वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, ठीक है? तो उनको स्टैटिस्टिक के जो है बच्चों को लेना है, जो उनकी परफ़ॉर्मेंस उससे बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन ये कि वो सारा जो सिस्टम आपके पास जो है पहले डेवलप हो चुका था, वो इस सिचुएशन में था कि कोई भी ग्रेजुएट जाके जो है वो वहाँ पर काम कर सकता था। अब सर जो है क्या आपका मकसद ये है कि जिस तरह मुख्तलिफ़ लोगों ने क्लिनिक्स खोल दिए हैं और वहाँ पे कोई सो कॉल्ड डॉक्टर डॉक्टर तो होते नहीं है और वो बैठ के लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो क्या आपका मतलब यही है कि ये बिल्कुल इसी तरह इंडस्ट्री में लाज़मी भी हो बात है, रहा तो है? वो तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे टूल स्टैटिस्टिकल टूल को इस्तेमाल नहीं कर, वो बेसिक टूल्स हैं, वो खुद भी कर सकते हैं, आम बंदा भी कर सकता है। हुँ। लेकिन ये है कि जो बेहतर जो है परफ़ॉर्मेंस अगर वो लेनी है तो स्टैटिस्टिक के बच्चों को जो है वो एनरोल वहाँ करनी चाहिए। वो बेहतर जज कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल का। सर क्या जो मॉडर्न स्टैटिस्टिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पाइथन, आर है, एसक्यूएल है और क्लाउड टूल्स ये कितने इम्पोर्टेंट हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने जो सारे सब्जेक्ट में जो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं करवा चुके हैं, ठीक है? तो हम उसमें ज़्यादा हमारा फ़ोकस ही उसी पर है कि आप जो है इन टूल को इस्तेमाल करके हम एनालिसिस करें, ठीक है? तो हमारा बेसिकली जो है जो पर्टिकुलर जो है जो जो बीएस में भी हमने किया हुआ है, एमएस में भी हमने जो एक हुआ है, तो हम सारा काम उ उसी पर ही जो है कर रहे हैं अपना सर एनालिसिस। इसका मतलब है जो मॉडर्न आपका जो करिकुलम है ये टोटली इसमें ये चीज़ें इंक्लूडेड है। ये सारे सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है। लाज़िम बात है इसको इंक्लूड हमने कर दिए हैं, जो हमने ओके। कोर्सेज़ जो रिवाइज़ किए हैं। ओके सर क्या ये बात किस हद तक आप मानते हैं कि जो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट हैं वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे कम फोकस करते हैं? नहीं, आप थ्योरी कह रहे हैं, थ्योरी किस चीज़ की बनती है, हुँ, ठीक है? थ्योरी भी जो है जो बन रही है, वो आपकी सोच पर ही बन रही है कि जो आप सोचते हैं, वो थ्योरी में डेवलप हो जाती है। हुँ, वो जब वो नया आइडिया आप सोचते हैं, वो मैथमेटिक्स में डेवलप हो जाता है, हुँ। ठीक है? तो थ्योरी तो वो सारे हमारे कंट्रोल में है, बेसिक थ्योरी तो अवेलेबल है, लेकिन ये कि जो आप इनोवेशन करते हैं, वो थ्योरी की फॉर्म में अगर हमें वो अंदाज़ा हो जाए कि ये थ्योरी है, ठीक है? उसके मुताबिक हम जो है, अपने जो है मैथमेटिकली मॉडल डेवलप कर लेते हैं, ठीक? उसी पे वो नई चीज़ ही बनती है, जी। ठीक है? तो वो आदमी की सोच बेसिकली है कि उस जो थ्योरी को जो है, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो आप सोचते हैं, वो आपकी डेवलपमेंट है। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार-बार मेरे ज़हन में आ रहा है कि जिस तरह मेडिकल फ़ील्ड का कोई बंदा फ़ारिग होके सीधा हॉस्पिटल चला जाता है, इंजीनियरिंग का कोई जाके सीधा किसी इंडस्ट्री में एडजस्ट हो जाता है, स्टैटिस्टिक का ग्रेजुएट सीधा जाके कहाँ एडजस्ट हो जाता है? एकेडमिक्स के अलावा? वो जो जो आपके पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है? और दूसरे ब्यूरोज़ हैं, ठीक एटॉमिक एनर्जी है, बैंकिंग है, ठीक है? ओके। तो और बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है? जिसमें जिसमें डेटा एनालिटिक्स अब देखो तो आप फ्यूचर में जो है सारा जो है उसी पर ही चल पड़ा है कि आप जो है जो बंदा एक्सपर्ट है डेटा एनालिस्ट है, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए वो कामयाब है, वो आगे निकल जाएगा, ठीक है? अब सारा फ़ोकस ही उसी पर ही है कि ये इतने बड़े डेटे को जो है आप जो है एल्गोरिदम के ज़रिए जो है किस तरह जो है जो बेहतर जो है आप एनालिसिस क्विकली जो है कितने टाइम में जो है मिनिमम टाइम में जो है आप जो है इसको कर सकते हैं। सर सर डेटा एनालिसिस पे ऑलरेडी यूट्यूब पे और कुछ और भी ऑलरेडी अवेलेबल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे वीडियोज़ है मीन्स इन ड डज़न्स मीन्स
20, 25, 30 वीडियोज़ अवेलेबल है घंटे-घंटे की। क्या कोई बंदा वहाँ से पढ़ सकता है और वो सीख सकता है? पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो उसी से आप जो आपका नॉलेज बढ़ेगा ना। आप देखो ना, आप जो है आप भी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो भी से भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आप ये देखना कि जो वीडियो जो आपके पास अवेलेबल है, वो किस हद तक जो है वो आपके लिए कामयाब होने का जो है लेसन देती हैं, ठीक है? तो आप जो है उनको देख सकते हैं, इसमें इसमें कोई शक नहीं है, आपने हेल्प लेनी है, ठीक है? हम भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे आप देखेंगे आपकी सोच जो है वो इंक्रीज़ होगी, आपको जो है डेटा एनालिसिस का जो है वो नॉलेज जो है आपका बढ़ेगा, उससे आप कामयाब होंगे। सर फिर क्यों किसी स्टूडेंट वो क्यों हुआ यूनिवर्सिटी में आ जाए और बीएस में एडमिशन ले ले जब ऑलरेडी फ्री टूल्स अवेलेबल है वहाँ से वो फ्री डाउनलोड करे यहाँ पे वो फीस भरेगा फिर यहाँ पे टाइम का पाबंद रहेगा 8 से 4 तक आप उसे पढ़ाएंगे भी लैब ले जाएंगे कंप्यूटर के सामने बैठाएंगे तो वो घर में बैठ के कंप्यूटर लैपटॉप से कंप्यूटर से डाउनलोड करके वीडियो पढ़ ले और आगे जाके नहीं जी, क्या करें, जो आप जो है जो टीचर जो है वो स्टूडेंट को जो है सामने जो है बिठा के करवाता है, उसकी जो ट्रेनिंग करवाता है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द वीडियो ने। इसलिए तो हम जो है जो किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो देख लें। लेकिन वीडियो से आप अंडर देखो ना, जब आप ज़बानी आप समझाते हैं, स्टूडेंट को देते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, आप आंसरिंग देते हैं, आपको रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पलें देते हैं सारा। हम्म, वीडियो में ये चीज़ मौजूद नहीं है, ठीक है? तो आपने जो है उससे जो है फ्रेंडशिप करनी है स्टूडेंट से, कि आपने जो है किस तरह उसको जो कॉन्फिडेंस देना है कि वो उस कॉन्फिडेंस को गेन करके जो है वो आपका जो है आउटपुट आपको को दे दे। सर इसका मतलब ये है कि ये जो ऑलरेडी अवेलेबल टूल्स है ये नेमुल बदल नहीं है क्लासरूम लाज़मी बात है, उसका टोटली जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सर लेकिन इसमें मेरा एक छोटा-सा क्वेश्चन है, गुज़िश्ता ऑलमोस्ट कोई 30-35 ईयर से आप ये टीचिंग शोबे से मुंसलिक है। जी। सर कितना डिफ़रेंस है स्टूडेंट की अखलाकियात में 90s के स्टूडेंट और 2026 के स्टूडेंट? अब वो टीचर के कंट्रोल में है कि स्टूडेंट को जो है कि अगर तो स्टूडेंट समझता है कि टीचर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, उसको जो है अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट की, तो फिर तो वो उसकी इज़्ज़त करते हैं। उस वक़्त तक इज़्ज़त नहीं होती जब आप जो उसको जो है वैसे ही जो है पढ़ा रहे हैं, आपको जो है सब्जेक्ट पर अबूर हासिल नहीं है, तो स्टूडेंट कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। देखा, स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि नॉलेज चाहता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो टीचर का काम है किस तरह जो है कंट्रोल करना है, ठीक है? उसको किस तरह जो है आपने जो है नॉलेज क लेकर आगे जाना है। स्टूडेंट वो समझ आता है कि इस टीचर के पास नॉलेज है या नहीं है, या फिर जो है हमें जो है वैसे ही जो है कोर्सली जो है पढ़ा रहा है। तो ये सारा जो है वो टीचर का जो है कंट्रोल है कि किस तरह जो है बच्चे को हम उस एजुकेशन के साथ-साथ बच्चे को ये भी नॉलेज देते हैं कि आपने बिहेव कैसे करें। सिर्फ जो पढ़ना ही जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसके साथ-साथ जो है जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो है वो चीज़ें भी बतानी है कि आपने सोसाइटी को लेकर आगे कैसे चलना है, बिहेव कैसे करना है, फ्यूचर जो है उनका कंट्रोल है, ठीक है? सर ये 90 के स्टूडेंट है, जिस तरह आप जब पढ़ते थे, खुद स्टूडेंट थे और आज जो लाज़मी बात है, सेम है यार। उस वक़्त जो है टीचर जो है आप डरते थे, खौफ होता था, टीचर है जो आप कोई बात नहीं कर सकते थे, ठीक है? अवेयरनेस इतनी नहीं थी, ठीक है? अब ये उस वक़्त लाज़मी बात है कि हम वैसे भी अगर टीचर गलत भी पढ़ा देता है, हम कुछ नहीं बोलते थे, कहते थे। अब देखो यार, स्टूडेंट के पास नॉलेज है, वो देख लेता है कि टीचर ने गलत पढ़ाया या सही है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है? तो इसलिए जो है ये आजकल का बच्चा जो है वो ज़्यादा शाइनिंग है, ठीक है? लेकिन ये कि लाज़मी बात है कि उसको टेक्नोलॉजी ने उसको जो है और जो है और मटीरियल जो है मवाद फराहम सर कर इसका दिया। मतलब है आप जो स्टूडेंट की जो इम्प्रूवमेंट है या जो चेंज है, आप इसको एक पॉजिटिव चेंज समझते हैं। लाज़मी बात है कि दैट इज़ अ गुड चेंज जो है जो आप सर मुख्तलिफ लोग ये समझते हैं मे बी हुँ। दैट मे बी देयर परसेप्शन वो समझ रहे हैं कि इन नियर फ्यूचर स्टैटिस्टिक कंप्लीटली दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ये इट मे बी अ पार्ट ऑफ सम इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स जिसमें स्टैटिस्टिक, केमिस्ट्री, बायो ये मर्ज करके कोई अलग डिसिप्लिन बन जाएगा और अलग स्टैटिस्टिक की अपनी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। स्टैटिस्टिक बेसिकली तो वो तो आप यूज़ है, वो तो किसी फ़ील्ड में आप जो है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी बायो का है, केमिस्ट्री का है, वे उस स्टैटिस्टिक को तो इस्तेमाल करना है, लेकिन वो बेसिक कर रहे हैं ना। हुँ। लेकिन ये कि जो हमने डेटा एनालिटिक्स जो है जो कोर्सेज़ जो है उसमें जो है वो स्टैटिस्टिक की जो है डेवलपमेंट जो की है, वो नॉलेज जो है वो दूसरे बच्चे के पास तो नहीं होगा। ठीक है? इसमें जिसने एनालिसिस करना है, डेप्थ में जाना है, तो वो तो जो इसमें डेटा एनालिसिस जैसे स्पेशलिस्ट होगा, जिसको एल्गोरिदम आती होगी, वो आर आती होगी, ठीक है? वो कभी मार नहीं खाएगा, वो तो आगे निकल जाएगा एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट। सर कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है इन आवर सोसाइटी जिस तरह पब्लिक हेल्थ है, क्लाइमेट चेंज है,
और पॉलिसी है। क्या स्टैटिस्टिक का कोई रोल है उधर? अगर है तो उसको हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़। ज़ाहिर बात है कि उसमें रोल है जो है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसमें जो है उसमें जा चुके हैं, उसमें काम करते हैं, हेल्थ डेटे में है, दूसरे भी जो इम्पोर्टेंट जो है जो इशू है, क्लाइमेट का इशू है, ठीक है? उसमें सारे बच्चे जो है काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें बहुत सारे जो है लोग जो है आगे जा चुके हैं। अब बेसिकली वो उसी उसी इमर्जिंग जो फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? उसी में हमारा फ़ोकस ज़्यादा है, उसी में हम जो है हम रिसर्च पेपर या बच्चों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि आप जो है ये फ़ील्ड जो है इमर्जिंग है, इसकी ज़रूरत है कंट्री को, तो आप इसमें जो है वो ज़्यादा जो है अपना जो है माइंड इस्तेमाल करें, इसको फ़ोकस करें ताकि हम आगे जो है जो हेल्प कर सकें जो है अपने जो कम्युनिटी की जो है कंट्री की। मुझे अभी तक जो आपके साथ डिस्कशन हुई है उससे मुझे ये समझ आई है कि ये जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके लिए वहाँ पे स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स का एब्ज़ॉर्ब होना और वहाँ पे जॉब ढूँढना, एडजस्ट होना ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू द कंट्री जो कि तरक्की पज़ीर है। हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे मसाइल हैं। अब तो ये देखो कंट्रोल जो है हुँ, वो हमारे हैंड में है, ठीक है? अब जो है टेक्नोलॉजी हुई है, आप कहीं भी बैठे हैं, हुँ, कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठे हैं, जहाँ मर्ज़ी बैठे हैं, वो हमारे कंट्रोल है। हुँ, अब तो आप कहीं भी जो है, जो पूरे जो है, जो दूसरे ममालिक हैं, उनका मुकाबला कर सकते हैं। हम कर रहे हैं, ठीक है? आपने जो है रिसर्च के हवाले से, ठीक है? हुँ। तो ये दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क जो है कि आप जो है उनका मुकाबला जो है या दूसरे कंट्री में एडजस्ट नहीं हो सकते या और इससे रिलेवेंट एक जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि जो आप स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं किसी रूम में बैठ के डेटा को हैंडल करना, तो दुनिया में जो इनकम्प्लीट डेटा है, मिसी डेटा है एंड आल्सो वी कॉल्ड फैब्रिकेटेड डेटा, रियल वर्ल्ड डेटा बायसनेस है इसमें, उसको आप कैसे स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं अब कि देखो उस हमारे पास जो है जी, डेटा जो आपके पास आ रहा है, ठीक है? वो बहुत मुख्तलिफ टाइप्स में है। हुँ, बहुत सारा डेटा ऐसा है जैसे जो है सेंसिटिव टाइप का डेटा है, ठीक है? हुँ, आप जो है बताना नहीं चाहते, जो है इन्फॉर्मेशन जो है लो नहीं देना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, हुँ, ठीक है? आप जो है वो किस तरह एक्सेस करते हैं, ठीक है? वो भी डेटा इकट्ठा हो रहा है ना, हुँ, ठीक है? सारा कुछ जो है ऐसे तो जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है? जो इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, उस वक़्त तक दूसरा बंदा जो है वो सही आंसर नहीं देगा। आप क्वेश्चनेयर जो है बनाते हैं, सारा कुछ जो है, जब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उससे एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो जो है ज़ाहिर बात है कि वो उसको भी कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है? आप उससे जो है पूछते हैं कि आपके अफेयर्स हैं किसी के साथ, अब इम्पॉसिबल जो है आपको कोई डेटा नहीं मिलता, ठीक है? आप एज पूछते हैं, नहीं मिलता, आप पूछते हैं कि आप सिगरेट पीते हैं, आप ड्रग इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वो इसलिए कि वो जो है यहाँ पर जो है कुछ सिचुएशन जो है हमारे कंट्री में है कि वो सोशल स्टिग्मा की वजह से हम आंसर नहीं देते हैं। लेकिन ये कि बाहर के कंट्री में आप पूछें वो आंसर दे देते हैं। जैसे आप यहाँ पूछें शराब पीते हैं तो एक तो पूछना ही बड़ा जो है हाँ, इल्लीगल है। बाहर के कंट्री में जो है वो बोल्डली जो है आपको जो है बता देते हैं कि हाँ मैं पीता हूँ, ठीक है? या मेरे अफेयर्स हैं किसी के साथ या कुछ। हुँ, यानी इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है सेंसिटिव टाइप की जो है वो हमारे कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है। हमें इन्फॉर्मेशन है, डेटा है ही नहीं है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास भी नहीं है। वो डेटा इकट्ठा करते हैं, हमें बहुत ही मुश्किलात हम खुद ने डेटा इकट्ठा किए हैं। आपने जो है नज़र के मैंने 2-3 पीएचडी भी इसी में जो है जो रैंडम रिस्पांस हुँ, में करवाए हुए हैं। हुँ। लेकिन ये कि हमें जो है मुश्किलात जो पेश आ रही हैं कि वो डेटा जो इकट्ठा कैसे किया जाए, ठीक है? सर एक क्लास में अगर मैं स्टूडेंट को 50 स्टूडेंट को बैठा दूँ, उनको क्वेश्चनियर पकड़ा दूँ, उनको कहूँ कि ये जो पहली लाइन वाले ए को टिक करे, दूसरे लाइन वाले बी को टिक करे, थर्ड को 4 को टिक करे, ऐसे अगर मैं डेटा फैब्रिकेट करूँ, ये तो रियल डेटा तो नहीं हुआ ना? तो इसी डेटा में और रियल डेटा में एक स्टैटिस्टिक का तालिब इल्म कैसे फ़र्क कर सकता है? एक्चुअली जो टेक्निक्स है ना हम अच्छा इसके लिए इसके लिए ये नहीं हम कह सकते किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। आप देखो ना आपने डेटा जो इकट्ठा करना है वो ऐसे करना है कि वो सिर्फ जो है बच्चा जो है वो कमरे में हो और जो है कोई और बच्चा वो आदमी ना जो जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्वेश्चनेयर दें, ठीक है? उसके लिए जो है ऐसी जो है जो टेक्निक जो है उसको आप बता दें कि आपने इस तरह जो है डेटा जो है आपके जैसे आप देखें इलेक्शन के दिनों में देखो ना आपके पास जो है एक बंदा जाता है वो ये स्नैप लगाता है। इस तरह जो है यहाँ पर भी जो है हम स्टूडेंट को कहते हैं हमने डेटा इकट्ठा किया है, ठीक है? कि आप जो है ये टेक्निक इस्तेमाल करें। आपने जो है जैसे मैं पूछता हूँ आप एज बतानी है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बताएगा। हाँ। या मैं पूछूँगा आपने सिगरेट कितनी पी है, दिन में कितनी पीते हैं, वो नहीं बताएगा। जब मैं कहूँगा आपने इसमें जो है जो जो आपने एक्चुअल जो है आपके पास मार्क्स है उसमें 10 ऐड करके या 10 सब्ट्रैक्ट करके आप आंसर दे दें, तो वो ईज़िली फ़ील करेगा। हुँ। ठीक है? आपको जो कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करना है बेसिकली जो नॉन रिस्पॉन्स है या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, जो इनकम्प्लीट डेटा है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस जो बच्चे को नहीं होगा, आप या जैसे डेटा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो नहीं होगा, तो वो आपको कभी भी सही
आंसर नहीं है। इसका मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि डेटा की मिसयूज़ या जो एथिकल डायलेमा है, इस सारे हवाले से आप अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। लाज़मी बात है, उनको बताते हैं हम, जो है उसमें जो है जो थीसिस जो है या वो रिसर्च जो है करवाते हैं, वो उसको करने के लिए। प्रोफेशनल आइडेंटिटी की क्राइसिस नहीं है स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, आप देखा कि आप जो है जो आइडेंटिटी जो है वो ये है कि आप जो है स्टूडेंट जो है वो किस हद तक जो है हमारे पास जो है जो फैकल्टी मेंबर जो है वो क्वालिटी के हैं या नहीं है, ठीक है। उसका के आप एक बार जो है जो उनको जो ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, वो उनको जो बताना है कि आपके पास ये हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, आप जो है इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप जो है आउटकम जो है वो आपने देनी है, ताकि जो है जो बाकी लोगों को पता चले, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर पता चल जाता है कि हमारे पास आउटपुट जो है क्या है, ठीक है। तो वो फिर लाज़मी बात है कि स्टूडेंट के ज़हन में भी होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना है, यहाँ पर जो है वो टीचिंग जो है स्टाफ अच्छा है, यहाँ पर जो है हमें जो है गाइडेंस मिलने के बाद जो है हमें जॉब के जो है मौके जो है मिल जाएँगे। तो आप देखोगे ये आने वाले वक़्त में आप देखोगे सारी रिप्लेसमेंट तो कंप्यूटर की आपके पास हो गई है। अब से डेटा एनालिटिक्स में सारी जो है कंप्यूटर के इन्वॉल्व हो गई है। तो हमने जो है अपने जो है ग्रेजुएट जो प्रोड्यूस करने या कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इस लेवल तक ताकि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, डिसीजन मेकर के सामने अगर 2 किस्म का डेटा चला जाता है, एक है जो स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट बंदे हैं और दूसरा डेटा एनालिस्ट है जिसके पास कुछ सरसरी नॉलेज है, सरफेस नॉलेज है। हुँ। तो उसको डिसीजन मेकिंग वालों के लिए सर कौन-सा डेटा ज़्यादा रिलायबल है और कौन-सा कम रिलायबल है, और वो किस एंगल से देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा बड़ा सिंपल है कि स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट्स डेटा को एनालाइज़ करके कोई रिज़ल्ट कंक्लूड करने में, और नॉन एक्सपर्ट जो कि सरफेस नॉलेज रखने वाले बंदे हैं, वो अगर डेटा को एनालाइज़ करके उससे कोई रिज़ल्ट कंक्लूड करे, तो उसमें कोई डिफ़रेंस आता है या दोनों ऑब्वियस बात है, वो डिफरेंस ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जब जो स्टैटिस्टिक्स का एक्सपर्ट है उसके पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि इस पर्टिकुलर जो है डेटे पर जो है कौन सी टेक्निक जो है आपने जो है इस्तेमाल करनी है। हर डेटे जो एक किस्म जो डिफरेंट डेटास है उस पर जो है जो हर किस्म के एडवांटेज और हर डेटे पर एक किस्म की टेक्निक इस्तेमाल करनी नहीं की जा सकती, ठीक है। उससे रिजल्ट जो है वो बायस आपके पास आएंगे, ठीक है। सर, अगर कोई स्टैटिस्टिक मॉडल हम अप्लाई करें और रिज़ल्ट गलत आ जाए या हार्मफुल रिज़ल्ट आ जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिज़ल्ट गलत आते हैं, ठीक है? ये इसमें ज़रूरी नहीं कि देखो ना, हाँ। जो एक्सपर्ट है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? उसने तो एक मॉडल बनाया, उसकी थिंकिंग है। ओके, ओके। हो सकता है उसकी थिंकिंग गलत हो, हाँ, ठीक है? हाँ। वो जो है नेगेटिव भी आते हैं, पॉज़िटिव भी आते हैं, ठीक है? फिर आप उसको रिवाइज़ करते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि क्या बैकग्राउंड में प्रॉब्लम है, ठीक है? जब आपके पास जो है, जो सारी जो डेटा मॉडल इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप बैकग्राउंड में भी देखते हैं कि हमारे पास डेटा जो है, वो किस किस्म का था, ठीक है? बहुत सारी सिचुएशन में ये हुआ है कि आपके जो है मॉडल जो है, वो सही परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आपने उसको मॉडिफ़ाइड करना है, उसको डिज़ाइन उसको और देना है। तो आपने कई दफ़ा वो काम करते हैं, तब जाकर जो है आपका हो, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट जो आपने सोच लिया है आगे, फिर तो आसान हो जाए, फिर तो सारा काम ही आसान हो जाए, बटन दबाने से आपके पास आंसर आ जाए। हाँ, सर मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। हमारे पास 2 किस्म का डेटा है, एक फैब्रिकेटेड डेटा है, एक रियल डेटा है, और दोनों कोई स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट के पास, स्टैटिस्टिशियन के पास दोनों डेटा आ जाते हैं। क्या स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट इसी फेक डेटा को रिफ्यूज़ करके रियल डेटा को उठा के मॉडल बना लेता है या फेक को भी उठा लेता है? नहीं, देखो ना, फेक डेटा वो भी कोई डेटा इकट्ठा किया होगा ना, यस, और रियल डेटा भी आप देखा। अब देखो कि जो सिचुएशन एग्ज़िस्ट कर रही है, ठीक है? जो मुख्तलिफ कंट्री में जो है, ठीक है? हमने उसको एनालाइज़ तो करना है। देखो ना, आपने ऑडियंस को बताना है कि एक्चुअल सिचुएशन ये है, उस सिचुएशन में जो है हमारा मॉडल जो है वो क्या परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है? अब देखो कि फेक डेटा से भी ना, ज़रूरी नहीं कि रियल डेटा से आपके सही रिज़ल्ट आएँ। रियल डेटा से आपको एक्चुअल हकीकत का पता चल जाता है ना, क्योंकि वो फिर वो उस हकीकत को आपने जो है वो करना है कि इसको बेहतर कैसे परफ़ॉर्म किया जा सकता है कि ये हकीकत जो है वो एक्चुअल में बदल जाए ना। ठीक है? हम होता तो यही है कि जो है हमारे लिए जो प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हम जो है एनालाइज़ कर रहे हैं ना। इसलिए जो है वो आप डेटा जो है आपके पास जो रियल डेटा है उसको आपने एनालाइज़ करना है। बेशक गलत रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है? आउटपुट जैसे आए, हुँ। जैसे मर्ज़ी है, लेकिन सर, इस पे मैं मैंने एक एग्ज़ाम्पल कोट कर लूँगा। एक रिज़ल्ट है हमारे पास, एक ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल है जहाँ पे ये है कि अल्कोहल है टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बॉडी। हुँ। ये मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट ये कहते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ग्लास ऑफ वाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडल्ट ऑन डेली बेसिस। अब वो भी साइंटिस्ट है, ये भी साइंटिस्ट है। एज़ अ लेमैन मुझे क्या पता कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? लेकिन देखो ना, आपकी जो जो सोच है, बहुत सारे लोग जो है एक ही फ़ील्ड पर काम कर रहे हैं।
आप देखो कि वहाँ पर जो है वो ईज़ी है। हमारे तो वैसे ही जो है ये इन चीज़ों को जो है उसकी तरफ जाते नहीं है, अल्कोहल की, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दी है। सर ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दी है ना कि अगर 2 किस्म का डेटा है, एक फेक डेटा है और जो स्टैटिस्टिक एक्सपर्ट है उसे पता भी है कि ये फेक डेटा है। तो क्या वो सिर्फ़ अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए मॉडल्स बना के उसको भी मार्केट में छोड़ देता है या देखो ना, जो उनके कंट्री में हाँ, उनका तो विज़न है कि ये हमारे लिए ठीक है, हाँ, ठीक है? हमारे लिए जो है वो टोटली ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करना ही मुश्किल है, ठीक है? लाज़िमी बात है कि जो है हमारे यहाँ पर जो है अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो हम तो वैसे ही जो है वो डेंजरस समझते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो लाज़िमी बात है कि उनके लिए ठीक है, हुँ, ठीक है? तो जो आदमी सोचता है परसेप्शन उसी के मुताबिक वो बना लेता है ना, ठीक है? तो आदमी की सोच जो है वो किस हद तक है, मुसलमान की सोच डिफरेंट है, बाकी की सोच डिफरेंट है, हमने अपनी सोच के मुताबिक करना है, ठीक है? उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक करना है। तो ये कहना कि उन्होंने वो ठीक कहा है, तो हम तो अप्लाई नहीं कर सकते ना हमारे कंट्री में, ठीक है? तो उनके कंट्री के लिए सूटेबल है, हमारे लिए सर नहीं है। क्या आप अपने शुमारियात के तलबा को एक माइंडसेट देते हैं व्हिच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट या सिर्फ़ फ़ॉर्मूला रटने की? नहीं, फार्मूला का तो बेईमानी है, तो वो तो इधर-उधर हो जाता है, वो मिनटू-सिकंटू में आप जो है उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा। उसको एक जो है ऐसे मारते हैं, वो चला जाता है। वो आपकी सोच है, वो ज़्यादा काम करती है ना, ओके, कि आपने जो थिंकिंग की है उसमें तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। हमने हज़ारों फार्मूले चेंज करते हैं, ओके। उसी पर थोड़ी रहते हैं, वो अलग-बे वाले तो होंगे, हाँ, ठीक है? लेकिन ये कि दूसरे जो है, जो हमारा सर्च करनी है, जो रिसर्च के हवाले से है, वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है? बच्चे टीचर को बच्चों को यही तो बताते हैं कि आपने चेंज कैसे करना है, मॉडिफाइड कैसे करना है, ठीक है? वो सारा जो आप सोच रहे हैं फ़ॉर्मूला चेंज हो जाता है। सर आप किसी लेमैन के लिए कोई एग्ज़ाम्पल दे सकेंगे कि एडवांस लेवल पर आप क्या करते हैं? मीन जिस तरह कोई और मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, कोई और फ़ील्ड का, ये सारे बंदे आप आके बता सकते हैं कि हम ये करते हैं प्रैक्टिकली। तो स्टैटिस्टिक का जो ग्रेजुएट है, पीएचडी ग्रेजुएट, वो क्या करते हैं? प्रैक्टिकली क्या कंट्रीब्यूशन उसकी होती है जो रियल वर्ल्ड में हम उसे दिखा सकें? नहीं, देखो ना, प्रैक्टिकल देखो उससे जो है जब वो पढ़ रहा होता है बच्चा जो है हुँ, उस वक़्त पे, तो वो देखता है कि कौन-सा उसको फ़ील्ड पसंद है, ठीक है? तो ठीक है, उसके में चॉइस कर लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है, बेसिकली ठीक जो है। अप्लाइड किस्म की जो है हम सिचुएशन हुँ, है, जैसे क्लाइमेट का ही है, क्लाइमेट चेंज, ठीक तो है। उसको जो है हम बताते हैं कि आपने जो है जो मॉडल जो है उसको कैसे जो है बनाना है, कैसे मॉडिफ़ाइड करना है, ताकि जो है जो कंट्री का जो बेहतर फ़ायदा हो सके, हुँ, ठीक है? तो उस फिर वो उसका डेटा जो है वो उसका इकट्ठा करता है, हुँ, ठीक है? तो उन सारी चीज़ों को लेकर जो है फिर वो एनालाइज़ करता है, हुँ। ठीक है? और फिर जो है उसके बाद पब्लिकेशन करवाता है, ठीक है? तो लाज़िमी बात है कि उसका जो है कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है उस काम में, ठीक है? तो वो हम जो है अप्लाइड की तरफ जो है ज़्यादा हमारा पास फोकस सर क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता कि जो स्टैटिस्टिक ग्रेजुएट होगा ही विल बी लाइक अ स्टोरी टेलर और लाइक अ प्रोग्रामर और लाइक अ मैथमेटिशियन अपनी आइडेंटिटी है। लॉस करके वो किसी एक साइड पे बैठ जाएगा? नहीं, उसको तो सारी जो है जो पता होता है कि क्या जो है फ्यूचर में जो है क्या होने वाला है, ठीक है? जो एक्सपर्ट है उसको सारा कुछ पता चल जाता है कि बैकग्राउंड में क्या हो चुका है और फ्यूचर में क्या हो चुका है। हुँ, हमने किस करके के ग्रेजुएट जो है वो तैयार करने हैं आने वाले वक़्त के लिए। हुँ, वो सारा माइंड जो है उसको जो देख रहा होता है। तो अगर वो डिसीज़न ले ले क्विकली उस टाइम पर जो है हमारे ग्रेजुएट के लिए, तो वो ये बेहतर जो है परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ग्रेजुएट को कोई पता नहीं होता है क्या करना है। उसने जो टीचर ने जो पढ़ाया, जो उसने कर दिया, वो जो है उसने ओके कर दिया है। लेकिन ये कि डिसीज़न जो है वो उसकी हेल्प करता है टीचर जो है कि आपने जो है किस किस्म पे जो है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके आपने जो है फ्यूचर की तरफ जो है क्विकली जो है कैसे मूव करना है। सर आखिरी क्वेश्चन है मेरा और ये स्पेशली आपके फील्ड से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन आपकी जो जॉब नेचर है इससे रिलेटेड है हमारे जो तलबा है 2026 के मीन जो यंग है जी, जी। उनके लिए भी और जो यंग टीचर है और जो सीनियर टीचर है उनके लिए कोई नसीहत है कोई आउटलाइंस अगर आप बता दें कि आप ये करें तो लाइफ इजी है अगर ये ऐसी बात है कि जो आप अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप कभी भी जो है डाउनफॉल की तरफ नहीं जाएँगे और जो है फिर जो अपनी जो है अपने नॉलेज को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करें, ठीक है? अब तो हमारे कंट्रोल में है सारा कुछ जो है हम किस तरह जो है वो बेहतर तरीके से जो है कम्युनिटी की जो है सर्विस कर सकते हैं। तो उनके लिए वैसे यही है कि वो अपनी जो है जो मेंटली जो है वो जो उसकी जो है जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है? और आगे बेहतर तरीके से जो है हम जो है बच्चों को जो है वो आगे लेकर जाएँ। हमारे लिए यही सरमाया है, बच्चे ही हैं और तो हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हमारा एक ग्रेजुएट जो है ये आगे निकल जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये है कि उनको भी फिर जो है टीचर का जो लेसन है या कि उसको भी जो है इस्तेमाल करें, जो टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है? उसको गौर से पढ़ें, सुनें, ठीक है? ताकि जो है आप जो है उसको उनको हम
ट्रेंड ही इस तरह कर रहे हैं कि ताकि जो है उनमें कोई कमी ना रह सके, ठीक है, तो हम ताकि जो है बच्चा फ्यूचर में जो है आगे मूव कर सके। ओके, थैंक यू सो मच सर, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और नाज़रीन व सामीन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।